أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. صدق الله العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد
وَإِن تَفْعَلُوا فَإِنَّهُ فُسُوقٌ بِكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَيُعَلِّمُكُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَإِن كُنتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَن يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 282، یہ قرآن حکیم کی سب سے بڑی آیت ہے۔ تقریباً یہ آپ یوں سمجھ لیں کہ پورا ایک رکوع بنتا ہے چند لائنوں چھوڑ کر۔ یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو، جو ایمان لائے ہو، اذا تداینتم، جب تم آپس میں کوئی معاملہ کرو، بدین، لین دین کا، قرض کا معاملہ، الی اجل مسمى، ایک مقرر مدت تک، الی کا مطلب تک ہوتا ہے، اجل مسمى مقرر مدت، فاکتبوہ، تو اسے ضرور لکھا کرو، ولیکتب، اور چاہیے کہ لکھے، بینکم، تمہارے درمیان، کاتب، ایک لکھنے والا، کاتب، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی آپ یہ معاہدہ جو آپس میں لین دین کا کر رہے ہیں، پیسوں کا ہے، زمین کا ہے، کاروبار کا ہے، تو یہ اللہ کا حکم ہے کہ اسے ضرور لکھا جائے، اور لکھنے والا کاتب جب لکھے تو وہ عدل کے ساتھ لکھے۔ ایسا نہ ہو کہ ایک بندہ ان پڑھ ہو تو وہ کاتب اس میں ایسی چیزیں لکھ دے جو معاہدے کا حصہ نہ ہو بلکہ دھوکہ بن گیا ہو۔ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ، اور انکار نہ کرے لکھنے والا، أَن يَكْتُبَ، کہ وہ لکھے، کما، اسی طرح، علمہ اللہ، جس طرح اللہ نے اسے تعلیم دی ہے، یعنی عدل اور انصاف کے ساتھ۔ فَلْيَكْتُبْ، پس چاہیے کہ وہ لکھے، وَلْيُمْلِلِ الَّذِي، اور چاہیے کہ وہ گھٹائے نہیں، جو وہ لکھ رہا ہے، علیہ الحق، جس شخص پر حق ہے، یعنی جس چیز کے بارے میں لکھی جا رہی ہے اسے وہ کم نہ کرے، وَلْيَتَّقِ اللَّهَ، اور ڈرے اللہ سے، ربہ، جو اس کا رب ہے، وَلَا يَبْخَسْ مِنْهُ شَيْئًا، اور کوئی چیز بھی اس میں نہ گھٹائے، جس کے ذمے ہے وہی لکھوائے۔ فَإِنْ كَانَ الَّذِي، پس اگر ہو وہ شخص، علیہ الحق، جس پر حق ہے، سفیہن، نادان، یعنی اسے وہ اتنا تیز ترار نہیں ہے، چالاک نہیں ہے، او ضعیفن، یا کمزور ہے، او لا یستطیع، یا کہ وہ اس بات کی طاقت نہیں رکھتا، ان یمل، کہ وہ اس کو لکھوا لے، فلیملل، پس اسے چاہیے کہ وہ لکھوائے، ولیہ، اپنا کوئی سرپرست، بالعدل، عدل کے ساتھ، یعنی جس شخص کے ساتھ ان میں سے ایک فریق کمزور ہے، نادان ہے،
या लिखवाने की ताकत नहीं रखता तो उसका वली, उसका सरप्रस्त उसकी जगह लिखवा दे। वस्तशहिदू, और बना ले शहादत, शहीदैनी मिर रिजालिकुम, मर्दों की 2 बंदे उसमें मर्द गवाह होने चाहिए। फ़इल्लम यकूना, पस अगर वो 2 मर्द ना मिले, रजुलैनी 2 मर्द अगर ना दस्तयाब हों गवाही के लिए, तो फराजुलुन, तो एक मर्द हो जाए, वम्रअतानी, और 2 औरतें, यानी मर्द एक हो तो पूरी गवाही होती है, और अगर औरत की गवाही आधी है, अगर एक मर्द कम है तो उसकी जगह 2 औरतें हैं, उन 2 की मिलाकर एक मर्द के बराबर गवाही बनेगी। मिम्मन, उन लोगों में से, तरज़ौना मिनश शुहदा, कि वो जब उन्हें बुलाया जाए तो वो खुशी के साथ, आप जो आपको पसंद हो आप उनको गवाह बना ले, जिन पर आपको एतमाद हो, यकीन हो। अंतजिल्ला, अगर भूल जाए, इहदाहुमा, उनमें से कोई एक, फतुज़क्किरा, तो उसे याद दिला दे, इहदाहुमा लुखरा, दूसरा। अगर कोई एक गवाह भूल जाए तो दूसरे को चाहिए कि उसे याद करवा दे कि वाक़यातन ये मुआहदा हुआ था। वला यअबा शुहदाउ, और गवाह इनकार न करें, इज़ा मा दुऊ, जब उन्हें गवाही के लिए बुलाया जाए, वो सच सच और साफ साफ बात कह दें कि ये चीजें मेरे हमारी गवाही में, हमारी मौजूदगी में तय पाई थी। वला तसअमू, और सुस्ती ना की जाए, कहली ना करो, अन तक्तुबूहु, जो कुछ भी तुमने लिखवाया है, सगीरन, छोटा है, औ कबीरन, या बड़ा है, इला अजलिन, एक मुकर्रर तक, यानी आपने जो भी मामला करना है 2 बंदों ने आपस में, वो मामला छोटा हो या बड़ा हो तो उसे चाहिए कि उसे जरूर लिखा जाए, रिटन शक्ल में होना चाहिए उसे। ज़ालिकुम अक़सतु इंदल्लाहि, ये अल्लाह के यहाँ ज्यादा इंसाफ वाली बात है, वो अक़वामु, और ज्यादा कवी है, लिश्शहादती, गवाही के लिए, वह अदना, और ज्यादा करीब है, अल्लाह तरताबू, के तुम शक में पड़ जाओ। लिखी हुई चीज होगी तो शक नहीं रहेगा, इंसान भूल भी सकता है, एक बंदा मुक्कर भी सकता है, गलत बयानी भी कर सकता है। इल्ला, सिवाय इसके कि अन तकून तिजारतन, के तुम्हारी ऐसी तिजारत हो, ऐसे आपस में मामलात हो, हाजिरतन, जो मौजूद हो, तुदीरूनहा बैनकुम, जो तुम्हारे दरमियान फिरते रहते हैं, यानी नगद। नगद का मतलब ये हुआ कि आपने पैसे दिए और चीज ले ली, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। फलैसा अलैकुम, तो नहीं है कोई गुनाह तुम पर, जुनाहुन, गुनाह, अल्लाह तक्तुबूहा, कि तुम उसे भी लिख लो। व अशहिदू, और गवाही दो, इज़ा तबायअतुम, जब तुम खरीदो फरोख्त करो तो उस पर गवाही जरूर डालो। कंप्यूटराइज सिस्टम अब आ गया है, वरना इंसान जरूर हो। वला युज़ारा, और तकलीफ न दी जाए, कातिबुन, लिखने वाले को, वला शहीद, और ना गवाह को। ऐसा ना हो कि एक ताकतवर ग्रोह, एक 2 फरीक हैं, उनमें से एक ताकतवर है तो वो कातिब को डराए धमकाए, और वो जो वसीयतनामा लिखवाया है या जो एग्रीमेंट लिखा हुआ है उसमें से वो तब्दीली करवाए। वला शहीद, और ना ही जो गवाह है वो उसका इनकार करे, उसे भी डराया धमकाया ना जाए जो गवाह है। व इन तफालू, और अगर तुमने ऐसा किया, फइन्नहु फुसूकुम बिकुम, तो ये तुमने बहुत बड़ा गुनाह किया। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरिए। वयुअल्लिमुकुमुल्लाहु, अल्लाह तुम्हें तालीम दे रहा है इस बात की, ये जो पूरा एक मुआहदा है। वल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीम, और अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है। इस आयत से ये हुक्म निकलता है कि कर्ज के मामले में मुद्दत की तायीन होनी चाहिए। जब आप आपस में कोई लेन देन कर रहे हैं तो उसकी एक लिमिट मुकर्रर होनी चाहिए कि कब इसकी वापसी होगी। अमूमन दोस्तों और अजीजों के दरमियान कर्ज के मामलात में दस्तावेज लिखने और गवाहियां लेने को मायूब और बेएतमादी की दलील ख्याल किया जाता है। लो जी, रिश्तेदार ही तो है, भाई तो हैं, कजन हैं, करीबी दोस्त हैं, लंगोटिए यार हैं, लिखने की क्या जरूरत है, मायूब समझते हैं। हालांकि ये कुरान का हुक्म है।
आप देखिए इसी वजह से लोग मुकर जाते हैं और नुकसान हो जाता है। लेकिन ये अल्लाह का इरशाद यह है कि कर्ज और तिजारती करारदादों को तहरीर में लाना चाहिए और इस पर शहादत सबत करा लेनी चाहिए ताकि लोगों के दरमियान मामलात साफ रहे। हदीस शरीफ में आता है कि 3 किस्म के आदमी ऐसे हैं जो अल्लाह से फरियाद करते हैं मगर उनकी फरियाद सुनी नहीं जाती। पहला वो शख्स जिसकी बीवी बदखुल्क हो और वो उसको तलाक न दे। दूसरा वो शख्स जो यतीम के बालिग होने से पहले उसका माल उसके हवाले कर दे। तीसरा वो शख्स जो किसी को अपना माल कर्ज दे और उस पर गवाह न बनाए। और गवाही के हवाले से ये बात इरशाद फरमाई कि यानी मुसलमानों मर्दों में से गवाह हूं। इससे मालूम हुआ कि जहां गवाह बनाना इख्तियारी फेल है वहां मुसलमान सिर्फ मुसलमानों ही को अपना गवाह बनाए। अलबत्ता जो जिम्मी है उनको भी गवाह बनाया जा सकता है। जिम्मी कहते हैं वो गैर मुस्लिम लोग जो किसी भी इस्लामी मुल्क के अंदर रह रहे हैं और गवर्नमेंट को टैक्स अदा कर रहे हैं, मतहत हैं, महकूम हैं, उन्हें जिम्मी कहा जाता है। मतलब यह है कि हर कस व नाकिस गवाह होने के लिए मौजू नहीं है, बल्कि ऐसे लोगों को गवाह बनाना चाहिए जो अपने अखलाक व दयानत के लिहाज से बिलअमूम लोगों के दरमियान काबिल एतमाद समझे जाते हों। अब ये बात जो कि रोजमर्रा के मामलात लिखने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब ये है कि अगरचे रोजमर्रा की खरीदो फरोख्त में भी मामला बै का तहरीर में आ जाना बेहतर है, जैसा कि आजकल कैश मेमो लिखने का तरीका राइज है, ताहम ऐसा करना लाजिम नहीं है। इसी तरह हमसाया ताजर एक दूसरे से रात दिन जो लेन देन करते रहते हैं उसको भी अगर तहरीर में ना लाया जाए तो भी कोई मज़ाक़ा नहीं है। और आखिरी बात कि किसी शख्स को दस्तावेज लिखने या उस पर गवाह बनने के लिए मजबूर न किया जाए और ये भी कि कोई फरीक कातिब या गवाह को उस बिना पर न तंग करे कि वो उसके मफाद के खिलाफ सही गवाही देता हो। आयत नंबर 283। व इन कुन तुम, और अगर तुम हो, अला सफर, इन सफर की हालत में, वलम तजिदू, और तुम्हें न मिले, कातिबन, कोई लिखने वाला, फरिहान मकबूजा, तो रहन कब्जे में रख लो। जैसे आजकल होता है ना, बैंकों में सोना रखवा दिया जाता है, वो उसको रहन कहा जाता है, कोई चीज गारंटी के तौर पर। फ़इन अमीना, पस जब तुम अमन की हालत में हो, बाज़ुकुम बाज़न, जब तुम में से आपस में, फलयुअद्दिल लज़ी, तो चाहिए कि लुटा दे वो शख्स, इत्तुमिना अमानतहू, जिसे अमानत दी गई है। जब सफर से हट जाएं तो वो अपनी गारंटी वाली चीज वापस ले लें और मुआहदा लिख लें। वलियत्तक़िल्लाह रब्बहू, और उसे चाहिए कि अल्लाह से डरता रहे जो उसका रब है। वला तक्तुमुश शहादा, और तुम गवाही को न छुपाओ। वमन, और जो शख्स यक्तुमहा, उस गवाही को छुपाएगा, फ़इन्नहु, पस बेशक वो, आसिमुन क़ल्बुहु, गुनाहगार दिल वाला है। वल्लाहु, और अल्लाह ताला, बिमा तामलून, जो कुछ भी तुम करते हो, अलीम, उसे खूब जानता है। ये मतलब नहीं है कि रहन का मामला सिर्फ सफर ही में हो सकता है, बल्कि ऐसी सूरत चूंकि ज्यादातर सफर में दरपेश आती है इसलिए खास तौर पर इसका जिक्र कर दिया गया है। और मामला रहन के लिए ये शर्त भी नहीं है कि जब दस्तावेज लिखना मुमकिन न हो सिर्फ उसी सूरत में रहन का मामला किया जाए। उसके अलावा एक सूरत यह भी हो सकती है कि जब सिर्फ दस्तावेज लिखने पर कोई कर्ज देने के लिए आमादा न हो तो कर्ज लेने वाला अपनी कोई चीज रहन रखकर पैसे ले ले। रहन का मतलब गारंटी के तौर पर। लेकिन चूंकि कुरान मजीद अपने मानने वालों को फयाजी की तालीम देना चाहता है और ये बात बंद अखलाक से फरूतर है कि एक शख्स माल रखता हो और वो एक ज़रूरतमंद आदमी को उसकी कोई चीज़ रहन रखे बगैर कर्ज न दे, इसलिए कुरान हकीम ने कसदन इस दूसरी सूरत का जिक्र नहीं किया। इस सिलसिले में यह भी मालूम होना चाहिए कि रहन बिल कब्ज का मतलब सिर्फ ये है कि कर्ज देने वाले को अपने कर्ज की वापसी का इत्मीनान हो जाए,
उसे अपने दिए हुए माल के मुआवजे में शय मरने का डर ना हो, फायदा उठाने का हक नहीं है, बल्कि वो जो अमानत है उसको उसी तरह वो रखे। मसलन गाड़ी अमानत रखी गई है तो उसे इस्तेमाल ना करे। अगर कोई शख्स रहन लिए हुए मकान में खुद रहता है या उसका किराया खाता है तो दरअसल सूद खाता है। होता है ना कि कोई मकान कर्ज गारंटी के लिए रख देता है। कर्ज पर बराह रास्त सूद लेने और रहन ली हुई चीज से फायदा उठाने में उसूलन कोई फर्क नहीं है। हाँ, अगर कोई जानवर रहन रख लिया गया हो तो उसका दूध इस्तेमाल किया जा सकता है और उससे सवारी और बार बर्दारी की खिदमत ली जा सकती है, क्योंकि यह दरअसल उस चारे का मुआवजा है जिसने उसको रहन रखा हुआ है और वो उसको खिलाता है। और शहादत देने से गुरेज नहीं करना चाहिए। अगर आप शहादत नहीं देते या उसको छुपाते हैं तब भी आप बराबर के गुनाहगार हैं। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।